Good morning, dear students. Today we will do the next topic of the second chapter of economics, that is sectors of the Indian economy. Before I explain the second next topic, let me explain these two graphs. First, you can see the graph. It is the graph of share of sectors in GDP in percentage. Here along the x-axis we have taken years, and along the y-axis we have taken the share of sectors in GDP in percentage, that is 10, 20, 30 up to 100%. Here blue color represents primary sector, red color represents secondary sector, and green color represents tertiary sector. Look at this graph. In 1973-74, the share of primary sector it was near about 40%. The share of secondary sector it was near about 12 to 15%, and the share of tertiary sector it was near about 48 to 50%, less than 50%. And come to 2013-14, here the share of primary sector बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, 40% से 10% हो गया है. इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में, इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है. इसमें 12 to 15% था, ये नियर अबाउट 20% हो गया है. एंड सबसे ज्यादा शेयर किसका इंक्रीज हुआ है? टर्शियरी सेक्टर का, जो लेस देन 50% था, नियर अबाउट 48%, वो अभी 70% के आसपास हो गया है. सो यू कैन सी द डिफरेंस, मीन्स शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट ओवर द ईयर. तो इसके पीछे रीजन क्या है? दैट इज व्हाट वी विल discuss now. The rising importance of tertiary sector. What are the reasons behind the rising importance of tertiary sector? Means tertiary sector का इतना importance के पीछे reason क्या है? First, due to increase in population, more and more schools, more and more hospitals, postals, telegrams are required, and all these come under tertiary sector. जितना ज़्यादा population है, उतना ज़्यादा school, hospitals, then transportation system, then postal, telegram, banks की ज़रूरत है. So all these are known as basic facilities, and all this come under tertiary sector. इनका डिमांड ज़्यादा है, तो tertiary sector का भी डिमांड ज़्यादा हो गया है. सेकेंड पॉइंट क्या है? बेसिक सर्विसेज, यू कैन से. सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू इंक्रीज इन द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चरल एंड सेकेंडरी सेक्टर. जितना ज़्यादा सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट होता है, both these sectors demand greater facilities, greater services, more and more services. जैसे स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग है. सो ऑल दीज बैंक है फॉर लोन्स, ऑल दीज सर्विसेज कम अंडर टर्शियरी सेक्टर. दैट इज व्हाई द डिमांड इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग. मीन्स सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम. लोगों की इनकम, लेवल ऑफ इनकम में भी इंक्रीज हुआ है. एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, देन पीपल स्टार्ट डिमांडिंग सम न्यू यू कैन से फैसिलिटीज लाइक आउटिंग, ईटिंग आउटसाइड, टूरिज्म. ये सब कुछ लोग डिमांड करते हैं. व्हेन एंड ऑल दिस कम अंडर the tertiary sector. So due to the increase in the level of income, people start demanding more and more facilities like shopping, outing, eating out, then tourism, then private hospitals, private schools, professional trainings, and all this will come under tertiary sector. Now fourth point is due to development in the IT sector. IT sector में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इन द रिसेंट ईयर्स, एंड ऑल दीज फैसिलिटीज कम अंडर टर्शियरी सेक्टर. दैट इज व्हाट यू कैन सी इन दिस ग्राफ कि टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस इतना, इसमें तो आप देख, इट इज क्लियर कि इम्पोर्टेंस
राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है. हियर वी हैव एक्सप्लेन why the importance of tertiary sector is increasing or rising. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, कम टू द नेक्स्ट ग्राफ. नेक्स्ट ग्राफ में आप देखो, इट इज द शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन परसेंटेज. शेयर ऑफ सेक्टर्स मीन्स किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं. हाउ मेनी पीपल आर, वो परसेंटेज में है. हाउ मेनी पीपल आर एंगेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर एंगेज इन which sector. Here also same blue primary, red secondary and green tertiary sector. Along x-axis we have taken year, along y-axis we have taken the employment in percentage, 10, 20 up to 100. Here in 1972-73 and 2011-12 data I have shown you. 72-73 में more than 70% people were engaged in primary sector. Only 10% people were engaged in secondary and near about 18%, 10 to 12 and near about 18% people were engaged in tertiary sector. अब देखो इसमें कितना चेंज हुआ है. चेंज क्या है, 70% से ये 44 to 45. अभी 2000 not recent, this is 2011-12 data. It is according to your book. जो बुक में है ये आपका डेटा है. इसके बाद भी 2014-15 का भी एक डेटा है. सो 11-12 के हिसाब से नियर अबाउट 44-45% पीपल दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर में लोगों का एंगेजमेंट इंक्रीज हुआ है एंड टर्शियरी सेक्टर में भी इंक्रीज हुआ है. मीन्स प्राइमरी सेक्टर में एंगेजमेंट कम हुआ है, स्टिल नियर अबाउट 50%, towards a little bit less than the 50%. अब प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा एंगेज है तो उस हिसाब से प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए. बट अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे जीडीपी में, इट इज़ वेरी लेस. ये लिटिल बिट मोर देन 10% और नियर अबाउट 10%. वाई? बिकॉज आवर प्राइमरी सेक्टर इज ओवरबर्डन and one can find seasonal and various type of unemployment. Seasonal unemployment, disguised unemployment, what we have already discussed in our previous class. Seasonal unemployment, disguised unemployment, under employment, all these terms we have discussed in our previous class. Seasonal means during a period of time they remain unemployed. Disguised means is appear to be employed but in reality actually they are not employed. Underemployed means according to their potential they are not getting job. ठीक है. So our primary sector is overburdened. That is why in a primary sector one can find various types of unemployment or underemployment. Now the question is how to solve this problem, how to create employment. अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे करोगे? एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं. रूरल एरियाज में, मोस्टली रूरल एरियाज में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. लोगों को लगता है कि वो काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग. तो आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हो? तो रूरल एरियाज में वी नो पीपल मोस्टली दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं. रूरल एरिया में पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर रिलेटेड हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. हम मीन्स गवर्नमेंट मीन्स वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन दे सकते हैं एंड इजी टर्म्स एंड कंडीशन में, सो दैट फार्मर्स कैन टेक्स लोन्स इजीली. टर्म्स एंड कंडीशंस में दे सकते हैं. ओके. थर्ड क्या हो सकता है? जो प्रोडक्शन के बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स, देन पेस्टिसाइड सब्सिडाइज्ड रेट में केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडाइज प्रोवाइड करवा सकते हैं. देन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एट ए वेरी लेस प्राइस. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. प्रोडक्शन के बाद स्टोर करना पड़ता है तो स्टोरेज कहाँ करेंगे? स्टोर के लिए भी कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. ये छोड़ के भी जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए भी इजी लोन्स, इजी टर्म्स एंड कंडीशन में रीजनेबल रेट में गवर्नमेंट लोन्स प्रोवाइड कर सकती है. अब आता है नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें
the article right to work. राइट टू वर्क एक आर्टिकल है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज आवर राइट, फंडामेंटल राइट कि लोगों को काम मिलना चाहिए. किन को काम मिलना चाहिए? दोज हु आर विलिंग टू डू जॉब. जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिलना चाहिए. राइट टू वर्क. अब राइट टू वर्क में एक स्कीम है गवर्नमेंट का अंडर राइट टू वर्क, that is मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल डेवलपमेंट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. दिस इज मनरेगा. दिस कम्स अंडर राइट टू वर्क. अब इस राइट टू वर्क मनरेगा में है क्या? मनरेगा में पहले 625 डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्नमेंट ने मार्क किया था थ्रू आउट द कंट्री. कंट्री में 625 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था. उसमें पीपल दोज हु आर विलिंग टू डू वर्क उनको 100 डेज ऑफ वर्क गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाते हैं इन अ ईयर. साल में 100 डेज काम उनको मिलना चाहिए, दोज हु आर विलिंग टू डू वर्क. अब if government fails to provide 100 days of work in a year, then government will provide allowance to the people. Then government will provide allowance to the people. So these are the basic things of मनरेगा. Means by doing this government is trying to provide employment to the people. And in urban areas also government can provide easy loans at a very reasonable rate, easy terms and conditions, so that the small businessmen they can take loan and start their own business. So I think this is clear to you. Thank you and have a good day.